FMCG के ऊपर. He is advising to JW. So please welcome Mr. Salman Rao. कि 10 मिनट में मैं शायद एक साथ कभी 5 मिनट अगर दूँ तो 15 मिनट में रिटेल का आर भी अगर कवर हो जाए तो इट्स वेरी गुड, बट आई विल मूव अहेड. Retail itself works out in the ideas by Ghulam Ahmad itself is a pure retail. If we see on a larger scale, retailing in Pakistan is 17.8% of the retail and the wholesale sector of the GDP. 8 trillion value of the retail and the wholesale sector. 16% of the workforce comes from the employers. And if we see Canada is the largest force which comes to the employment is retail. It's not the industry or it's not the manufacturing. So we are also heading as the largest, second largest. Fourth is 3.7%, which again in current economy is a very enlightening part of growth. अगर हम पहले देखें तो किराना स्टोर होते थे मोहल्लों में, दुकानों पे, जहाँ क्या होता था, बच्चे को नौकर को भेजते थे, जाके वो चीज़ ले आते था. बहुत से लोगों का वहाँ पे खाता खुला होता था. मेरे खाते में देखिए, फ्रॉम द शॉपकीपर टू द शॉपर. अभी नई टर्मिनोलॉजी मार्केटिंग वालों ने की कि यार ये कंज्यूमर था, एक खरीदना है, बेशक वो प्राइस देख के करे, वो क्वालिटी देख के करे या कोई चीज़ को देख के करे, वो उस इंडिविजुअल आउटलेट में जिसने मोहल्ले में या एरिया में अपनी आउटलेट को बना दिया फ्रॉम वे यू पिक योर अंडर पुटिंग इट डाउन. 10,000 20,000 से ज़्यादा SKUs दे आर अवेलेबल. यहाँ पे when the families go, now this is more of a family place to go, where kids go, where husband go, wife go, and what they do is observe the wives. They are watching on the shelf the pricing of the products and then deciding on the thing what they have to choose. Now it's a bigger scale. अब वहाँ से आप ग्रॉसरी भी कर सकते हैं, शायद अपनी होम आइटम्स भी ले सकते हैं. Individual store to the large retail stores. What happened next? I'm going just 50 years plus. They know सबसे पहले Azam Class Market was a place where people would go. That was the hub from where the entire products were to be distributed in the whole of Pakistan. Anarkali was the most popular place for the ladies to go, not only for cloth shopping, but वहाँ पे उन्होंने जाना है तो उसके बानो बाजार से चाट लोग खाते हैं. That was the कोई चांद रात को एक लिबर्टी मार्केट में और एक फोर्ट्रेस पे. That was the crowded place which used to be. But now what has changed? Then came the brands. आपको आजम क्लास मार्केट या नारकली वाला सिनेरियो नहीं है. if I am not wrong, कभी शेख अनायतुल्लाह भी नारकली में ही होते थे, वहीं से लोग जाते थे. अब ब्रांड्स ने अपने आउटलेट्स खोले. क्यों? I know because I was heading ideas for a time and we created almost 75-80 outlets in the city, in the country. पहले ये होता था कि ये wholesalers के पास आके दुकानों पे आके बिकते थे, कराची से माल आया. They were being sold at additional cost. People were not relying the right price or right quality. बहुत मजा आया. एक आउटलेट चेन खुली, दूसरी खुली, तीसरी. लेकिन ये millennials के outlets. We skip things because the time short and we started again. फिर क्या हुआ? Gen Z आई. हमने कपड़े सिलवाने नहीं है, दर्जी के पास नहीं जाना है, हमें सिले सिलाई चाहिए और हमारी टेस्ट के चाहिए. So their choice was these brands and many more of these brands. And Nayador is the latest brand induction in this category, where the youngsters, the Gen Z would go and buy this stuff. They are more interested in buying the products or their clothes which are stitched than going to the tailor. लेकिन आज भी जो हमारी शायद माएँ हैं या then what changed? पहले शलवार कमीज सिलवाई जाती थी,
trousers को कोई से छलवाए जाते थे. I remember still there was an outlet right opposite to our school. From getting it stitched to the ready-made. तो मैंने जब आइडिया ज्वाइन किया तो वहाँ पे कोई पैर को मिलता नहीं था, वहाँ पे सिर्फ कपड़ा मिलता था. क्वेश्चन आई हैड द चेयरमैन ऑफ द ग्रुप, ईद के चांद रात से 10 दिन पहले आपकी दुकान पे क्यों आएगा? क्या कोई टेलर आपको किसी सर्विस में द ट्यू ब्रांड्स? एंड वी स्टिल रिमेंबर द जिंगल विच यूज्ड टू कम ऑन टीवी, पहले माटा बिस्कुट. देन द ट्रेंड्स चेंज्ड, स्पेशली पहले इन ब्रांड्स के आने से पहले आपको याद हो, आज भी गुलबर्ग में एक वो भूसा गली जहाँ पे भूसों की और जूतियों की दुकानें हैं. लेडीज वुड लव टू गो. ये जो सारी दुकानें हमने देखी, जो स्टोर्स देखे, उनका नहीं नाउ नॉट ओनली वन आउटलेट, मल्टीपल आउटलेट्स अंडर वन roof. Then these bigger shopping malls. In bigger shopping malls में ग्रोसरी से लेकर कपड़े से लेकर हर चीज को एक जगह पे कर दिया with a food court. Now what is happening to a family on the weekends? Going to these malls, enjoy their weekend, spend time on the outlets, under one roof buy what you want to buy, have food, come back. Middle class family going into those outlets. That has, for youngsters or for the Gen Z, it has changed to online shopping. हर घर में जब से कोविड आया है इतनी पहले होती है. और the product जहाँ पे जो आ गया उसके अंदर कई दफ़ा होता है आपने कुछ साइज मांगा, आपने कुछ क्वालिटी देखी, कुछ चीज़ें देखी, but it's a different version. So those things had to be done, which is more likely by the youngsters, which is coffee shops and ice cream parlors. Gloria ji बहुत मशहूर हुआ इस दौर में, and it was crowded with youngsters. But now coffee shop are better. So this is a trend which has happened, and not only the coffee shops. If you see the ice cream parlors, I got a chance to meet the CEO of Eco Ice Cream 2 days back. Eco is one of the old ice creams which we know. जिस तरह पोलका को हम जानते थे, इस तरह को and the Devan Das is here, Mary Brown is here. So what are we seeing? International chains are interested to be in this country, but they see some people still say 250 million, some government organizations say 280 million. If you take a medium risk, 260 million population is a big opportunity what they see in this country. And if people say that people don't spend, the class which uses this, they still spend. If they don't spend, then government mall should have been empty now. Packages mall, there should not be any cars which are seen. But there is a class which still says that that affordability factor for those is still there. 45% growing, modern trade 26%, FMCG 30%. Even with this economy, these are growing. These are really reliable figures coming from RF consumer. The leadership pipeline is missing. So there are opportunities available which we can segment it out. Some institute can take this as a certification for the retail, which will be good because the quantum of the retail which is coming to Pakistan at the high end. The foreign retailers, they see the people who place and they will sell within 3 days or 5 days. It still is something which we need to formally train. The people are trained at the outlets by the seniors, but that still has to be done. With global retail chains coming in, and trade marketing is the biggest buzzword today. I know what I've told, there are other brands, because we in our company, we are talking about 15 brands internationally, out of which not many of them are interested from Turkey, from China, from Scandinavian countries and European countries. Gen Z is the biggest user of these coffee chains, of the new retail, of the way we should value them, we should look from now. Retail is the future, leave it. Thank you very much.
उमर इब्राहिम है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हमने बात की थी कि हम ई कॉमर्स की तरफ जो है ना जेन ज़ी काफ़ी ज़्यादा मूव कर रही है और उसमें अट्रैक्शन ये भी है कि उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है बिकॉज यू एक्चुअली केटर दी जो हमारे ओवरहेड्स हैं उसको। तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ट्रेड मार्केटिंग की बात की है, तो ट्रेड मार्केटिंग कम्स विद द ट्रेड क्वालिटी। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो ई कॉमर्स का नया एंटरप्रेन्योर है उसको ट्रेड क्वालिटी एंड ट्रेड मार्केटिंग में ऐसा क्या करना चाहिए कि वो हर तरह के स्केल के ऊपर अपनी जो कंज्यूमर है उसको मैप कर सके। बिकॉज जो जेन ज़ी है वो यूजुअली दे लेसर बॉदर्ड कि कोई चीज़ आ रही है वो किस क्वालिटी की है किस क्वालिटी की नहीं है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट मिलीनियर्स तो वो जैसे आपने बात की कि फील करके वो देखते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट का एरिया है। तो वो यंग एंटरप्रेन्योर्स कैसे इस एरिया को जो है ना इम्प्रूव करें एज फार एज ट्रेड क्वालिटी इज कंसर्न। They are the first trials of the new things today. So वो क्वालिटी भी देखते हैं, क्वालिटी भी देखते हैं, प्राइस भी देखते हैं। तो वो रिजेक्ट करते हैं फिर आगे नहीं चलते। जहाँ तक बात है ट्रेड मार्केटिंग इज मोर स्पेसिफिक टू द ट्रेड आउटलेट। जो ई कॉमर्स है वो ज़्यादातर आपकी चल रही है आपकी इलेक्ट्रॉनिक या तो सोशल मीडिया वाली है। So you have to be more prominently available on the electronic media or social media. रिटेल वाला तो आपके दुकान के अंदर आएंगे तो देखेंगे ना ट्रेड मार्केटिंग क्या होगी। अगर दुकान के अंदर आ ही नहीं रहे तो आप उसके साथ एक्सपोज ही नहीं हो। सो दीज आर टू डिफरेंट चैनल्स। यू हैव टू बी गुड एट बोथ बिकॉज ये वाले ख़त्म नहीं हुए, वो वाले अपनी मस्ती में। अदालत शमार की बात करूँ जो हमारे फिस्कल ईयर 25 तक के डेटा है, वो ये कहते हैं कि इट इज़ 17.21% ऑफ द शेयर ऑफ द GDP एज कम्पेयर टू उससे पिछले 3 सालों में देखें तो 21-22 में इट वॉज 19.6, देन इट वॉज 18.95, देन इट वॉज 18.30 and now it is like 17.21. So it is little bit on decline in the last 4 years or so. वॉल्यूम तो बेहतर हो रहा है लेकिन जो शेयर ऑफ GDP है उसमें रिटेल सेक्टर जो है वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है। एंड अगर इंटरनेशनली कंपेयर करें ई कॉमर्स की आपने बात की विच इज़ वंडरफुल, तो वो जो शेयर है ई कॉमर्स का वो बहुत ही कम है। अबाउट लाइक 18 ट्रिलियन जो पूरी मार्केट है उसमें से कोई 15% जो है वो ई कॉमर्स की तरफ मूव हो रहा है, बाकी का नहीं हो रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। हम शायद लोएस्ट हैं इवन इन द रीजन विद रेफरेंस टू द ई कॉमर्स। सो व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर दैट? क्या हमारा रिटेलर इसको टैप नहीं कर पा रहा या क्या है? See, and different reports even they issued like in South America मैंने RFO वाली भी देखी। There are different numbers which are being given. गवर्नमेंट के नंबर्स भी जो हैं वो उसमें से कितने कौन से नंबर रिलायबल है कहीं है वो डिफरेंट। हम ज़्यादातर देखते हैं when we talk to the actual large retail chain groups, they tell us कि where it is going and how it is. There are sections which are not doing good, but there are larger sections who are doing good. जहाँ तक बात है हमारी ई कॉमर्स की, आपको पता है there is जिस तरह हमारी ग्रे इकॉनमी है इसी तरह बहुत सी चीज़ जो हमारी ये बाहर जो जा रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, anyone going from Pakistan to Canada or America or even Britain, see in there अगर उनको दो बैग अलाउड है उसके अंदर 10 या 12 जो सूट हैं वो कपड़ों के सिले अनसिले वो जा रहे हैं जी उस बहन के लिए, बेटी के लिए, भाई के लिए, वो विच इज़ नॉट डॉक्यूमेंट एंड इट्स अ ह्यूज अमाउंट। सेकेंड चीज़ what we have to see is people have shifted while you are living there. अगर हम अपनी चीज़ों को देखें फैशन रिटेल में बात कर लें, वहाँ पे इन आउटलेट्स ने अपने रिटेल स्टोर्स खोल लिए। सो इट्स मोर कन्वीनियंट। देयर आर पीपल आज लाहौर में बैठे आपको MKG को चीज़ चाहिए, आप डोरी बर्ड चाहिए, आपको कोई चीज़ चाहिए, ऑर्डर दैम विद इन अ वीक आपको मिल जाती है जो कि डॉक्यूमेंटेड। सेम इज़ द केस विद डोरी बर्ड। हमारे साथ सबसे बड़ा इशू यही है डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे है और कितनी आती है। ट्रेजेडी की है। आप सब ने पढ़ा होगा कि आइडियाज़ बाय कुल अहमद नॉट आइडियाज़, कुल अहमद क्लोज देयर एक्सपोर्ट यूनिट्स विच इज़ अ ट्रेजेडी अंडर द करंट सर्कमस्टांस। सफायर ने कितनी चीज़ रिड्यूस की है, बाकी
ये एक वो ट्रेजेडी है विच इज बीइंग बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी. By the way, your session was really good. So my question is, how can we leverage AI in this era? Because as you know, we are living in the era of AI. So AI को use करके हम कैसे retailing का future को मज़ीद आगे का प्रयास कर सकते हैं? Because I think that was something that was missing in your session as well. Okay, last month I am in touch with, or I am dealing with lot many Chinese delegation, you know. And one of the thing which I learned over there, which was very interesting, हमने electric bikes launch की. We were discussing with them how can they support us. उन्होंने क्या किया, उसी वक्त AI पे बिठा के ना, उस लेडी ने अपने आप को बाइक्स पे बिठा के उसी मोमेंट दे मेड द वीडियो एंड दे स्टार्टेड मूविंग. अगर मैं बात करूँ फैशन रिटेल इंडस्ट्री, तो इसी AI से वो जो कपड़ा या जो आप अपैरल है ना, आप अपने आप पे पहन के उसको लाइव देख सकते हो, विच इज़ एन AI मोड विच कैन डू. अभी तो आप देखते हो ना, लोग आपको दिखाते हैं कि ये देखें इस तरह लगा हुआ है, मैनीक्विन पे लगा हुआ है, बट हाउ विल इट लुक ऑन यू दैट एन AI कैन डू राइट. सो दैट इज़ अ डिफरेंस. खास तौर पे द पीपल हु आर सिटिंग आउटसाइड पाकिस्तान और इवन सिटिंग इन द रोड, जो खुद नहीं जा रहे, ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, दे कैन यूज़ द AI सी कि यार मुझ पे अच्छा लगेगा, बड़े फूल हैं, छोटे फूल हैं, कलर क्या है, दैट इज वेयर वी कैन बेनिफिट. तो जेन जी में जिस तरह पहले हमारी जनरेशन थी, उसमें एक लॉयल्टी होती थी ब्रांड को. हमने ब्रांड बड़े बड़े ब्रांड लॉन्च करते थे, 5 साल मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की, और वो लॉयल्टी चलती 10-20 साल. आज का जो जेन जी है, उसकी जो मैंटेलिटी, वो नई नई चीज़ें ट्राई करता रहता है. तो अगर मैं कोई ब्रांड लॉन्च करता हूँ फैशन में, फूड में, अब मुझे पता है कि 2-4 साल मैंने चलाया है, मेरे पास जेन जी है, कल को नया ब्रांड आएगा, ये मेरा लॉयल नहीं. तो हमें किस तरह स्ट्रक्चर होना चाहिए कंपनी में, प्रोडक्ट्स को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रक्चर्स में मार्केटिंग में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि हम लोग उसको अडेप्ट करते रहें जो नए से नए ट्रेंड्स आ रहे हैं. क्योंकि जेन जी 3 महीने बाद आज कुछ दिल कर रहा है, 6 महीने बाद दूसरी यहाँ दिल कर रहा है. तो इस प्रॉब्लम को, इस गैप को हम लोग कैसे देख रहे हैं बीइंग अ कंपनी ऑनर? देखिए, कल बात वो सब 6 महीने बाद आके पूछते हैं मेरी अगली प्रमोशन कब होगी. तो आपने जिस कंपनी, आपने देखिए जो कंपनी अभी जो रन कर रही हैं, नॉट एवरी ईयर, साल में 3 दफ़ा वो नए प्रोडक्ट लाती हैं. वो मार्च में लाएंगी, फिर समर लाएंगी, फिर ऑटम लाएंगी, बिकॉज दे हैव टू कीप ऑन सीइंग व्हाट दीज यंगस्टर्स. आई वाज जस्ट टॉकिंग टू द ओनर ऑफ नया दौर, शी इज़ माय फ्रेंड. वो कहती है कि मैं आज नहीं देख रही, मैं जो अपने कपड़े बनवा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि 6 महीने बाद जिसने पहनना है उसका ट्रेंड क्या है, वो किस चीज़ को फॉलो कर रहा है. जो ट्रैवलर्स हैं, बाहर जाते हैं, तो बाहर के ब्रांड्स को देख के आते हैं, तो उन्हें उस किस्म का ब्रांड चाहिए. इफ़ यू आर नॉट सीइंग मिनिमम 6 months अहेड, योर सिचुएशन विल बी, जो आज एकेडेमिया और इंडस्ट्री में फाइट होती है. एकेडेमिया कहती है जो हम पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट है, इंडस्ट्री कहती है जो आप पढ़ा रहे हैं, जब तक बच्चा मार्केट में आएगा वो एब्सोल्यूट होगा. सो बी अहेड ऑफ द मार्केट, यू विल ऑलवेज बी. थैंक यू. Thank you, sir.